Hi to चुटकी. Wait, that's me. वो प्यार करने लग जाए will kill you, I'm telling you. आप सीख जाओगे बैड रील. जलेबी इस वेंडी रील से उठा के बोल रही हूँ. This is about your life. I literally quit. यही दुनिया में रहती हूँ और खुश रहती हूँ. Hey girlies, what's up? Welcome back to my channel. So this is Khushi. If you don't know me, hi, what's up? Welcome to the channel. फिर से बोल दिया मैंने. Okay, fine. In this video, as you can clearly see by the thumbnail and title and my look, that we are going to become a soft girl aesthetic today. So we are going to do our outfit, hair, makeup, and accessories in this video and become the soft girl aesthetics. If you are interested, then keep on watching. This girl right now might look stupid, but by the end of the video, we are going to look pretty. I mean, soft girl aesthetic इतना angelic vibe देता ही है. मैं क्या करूँ? And lately I want to channelize that within myself, so let's go. First step first, look at my nails. They are empty. I don't like them at all, so let's paint them. I think the pink one is today's vibe, so let's put this on. मुझे पहले करना चाहिए था, but then I just forgot. I love how as a woman we give attention to these little things like nail paints, our hair, our makeup. Being a woman is only chatpata, I feel. Also love the color, it's so cute. By the way, जब तक मेरा nail paint dry हो रहा है, say hi to चुटकी. हाँ पीछे तो बड़ा सा है पता नहीं. Now that my nail paints are dry, I think it's time we get to our cute outfit as well. And मैंने outfit निकाल लिया है. See, soft girl aesthetics does not really mean you have to go with pinks and beige colors and whites. It's all your choice at the end of the day, right? लेकिन I am feeling pink today as my nail paint says it already. तो I decided to go ahead with this cutest little top जिसको मुझे पहनने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, तो मैंने इस वीडियो में बस मौका निकाल लिया. एक न्यू क्यूट स्कर्ट I purchased from Zudio and मैं सोच रही हूँ इन दोनों को पेयर करके देख रही हूँ how they will look. I have no idea, but I'm excited to wear this. आज being a woman की तारीफ करेंगे हम लोग. Okay, the outfit is on. मुझे नहीं पता ये कैसा दे रहा. I think I'm quite okay with this. It's not a wow outfit. I think I love the two shades of pink going on right now. तो मैं यही outfit को continue करने वाली हूँ. Welcome to the makeup segment. I hope lighting is fine क्योंकि हमेशा मुझे lighting में ना बहुत ज़्यादा problem होती है. But I am so excited for my favorite part, which is makeup. Obviously, vitamin C serum because my face is dry. So every time I do my makeup, I make sure I use a serum before going ahead with my makeup. Mirror. My favorite hair clips lately. आज मैं लगाऊंगी Why not pink? ये दो clips मैं use करने वाली हूँ. I think they are super cute and giving pink. You know, there is this theory they say कि अगर एक लड़की वापस से pink को प्यार करने लग जाए, just know she is starting to love herself back again. Girly. Queen. That's me. No, not really. I mean, yes, I love myself, but I don't know. I never hated pink. I'm using a primer. I'm not going to give you the makeup detail today. ऐसे मैं कभी नहीं देती. जब मैं ये वीडियो के बारे में सोची ना तब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, but now that I'm sitting in front of the camera to talk, I have nothing to say. There are always moments I go blank. Lately I have been visiting my old days a lot, like my childhood days, my school days and all that. जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, I'm strongly feeling the way like मैंने कभी नहीं सोचा था कि I would be making such videos in the future and मैं वीडियोस भी बनाऊंगी. You know what I mean? I think बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपने ओल्ड डेज में वापस जा रहे हैं. मेरे साथ तो काफ़ी हो रहा है. अपना बेस हैवी नहीं करना चाहती. अरे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट था यूज़ करने के लिए, मुझे वो यूज़ करना चाहिए था. शिट. बच्चा कुछ बस इस तरह नेक पे लगा दो सारे. द फैक्ट दैट आई एम ऑल्सो यूजिंग अ पिंक स्पॉन्ज. I did not decide on this, okay? This is the sponge I use. Soft girl aesthetic के बारे में आप जब सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में क्या आता है मैं बताती हूँ. A girl holding flowers, maybe with her bicycle, wearing a white dress, cute सा hair style बनाया उसने with a back pin ऐसे करके. उसका vibe भी मैं बता दूँ. उसका vibe is just calm, composed, soft spoken, you know, but yet confident, pretty. ये सारे ऐसे image form होता है मेरे को soft girl के बारे में बात करते हुए. नो वे आई एम दैट पर्सन इन एनी वे, बट एंड मैं सच बताऊँ बचपन से ही दैट यूज टू बी माई ड्रीम वुमेन बिकॉज मैं बचपन से ऐसे सॉफ्ट स्पोकन गर्ल रही हूँ. इवन दो नाउ इट्स टोटली डिफरेंट आई वुड से, बट बचपन से आई यूज टू बी दैट सॉफ्ट स्पोकन गर्ल हु यूज टू बी काम एंड यू नो काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. मैं अभी भी हूँ ऐसी, बट नाउ इट्स a bit different. I am equally a baddie, I would say. I just feel like today's generation does not need a soft girl aesthetic. Genuinely feel that today's generation or today's world needs more like a baddie and outspoken women more than
गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, एवरीबॉडी फेसेस आवर सोसाइटी, एवरी वुमन फेसेस अ सोसाइटी। हम सबको पता है सोसाइटी में हमारे लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए, एंड ये मर्द जितना भी रोल है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है नहीं होता है, उन्होंने हमारी जिंदगी नहीं जी है तो उनकी तो रहने दो। एंड मैं लिटरली सच बता रही हूँ, जितनी भी ये लड़कियां हैं ना जो आज के टाइम में सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड हार्टेड है, एवरीबडी इज काइंड हार्टेड बट नॉट एवरीबडी इज अ नाइस पर्सन, राइट? जितनी भी लड़कियां हैं इस टाइप की हु इज अ नाइस पर्सन, इन द कोर्स ऑफ लाइफ आप सीख जाओगे बैडी बनना। टेलिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप सीख जाओगे, बिकॉज आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें थोपी जाएगी ना इफ़ यू डोंट स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, अगर आप नहीं बोलोगे ना द वर्ल्ड विल किल यू, I'm telling you. Today's generation, I feel, be a good person and not a nice person. And आपने ये सारी चीज़ें of course रील्स में बहुत सारी सुनी होगी, मैं भी रील से उठा के बोल रही हूँ, but it does make sense, doesn't it? Give you this one little example, okay? मैथ्स में हमें कहा जाता है कि मान लो कि वो एक एक्स है, तो आपने कहा ठीक है मान लिया, ठीक है। सो अगर आप मान लेते हो यू आर अ गुड पर्सन इन एवरीबडी साइज, लेकिन वहीं पे अगर आप अपना पॉइंट रख के बोलो नहीं वो एक्स नहीं है वो बी है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप अपना मर्जी रख रहे हो यहाँ पे कि मैं उसको बी मानूंगी, मैं एक्स क्यों मानूं, तो आप गलत बन जाओगे। क्यों? आप एग्जाम में भी फेल हो जाओगे क्योंकि आपने एक्स की जगह बी लिख दिया, ठीक है। टीचर्स भी बोलेंगे क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुमने एक्स की जगह बी कैसे लिख दिया, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मानना है एक्स, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? दिस इज नॉट अबाउट मैथ्स और एक्स और बी, दिस इज अबाउट योर लाइफ। एंड जहाँ पे आप अपनी मर्जी चलाओगे वहाँ पे आप गलत बनोगे, बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर रिलेटिव्स और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। बहुत लोग ये खुद के पार्टनर से अबैंडन कर देते हैं अपने लोगों को, बिकॉज वो उनके हिसाब से नहीं चल रही है। कैमरा की बैटरी डाइड जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया, एंड मीनवाइल मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया, बहुत बेसिक सटल किया है। बेसिकली बस यही कहूँगी कि आज के टाइम में ना बी अ गुड पर्सन एंड नॉट अ नाइस पर्सन। आप अगर सबके लिए अवेलेबल हो टू हेल्प एवरीबडी, कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा है, यू आर जस्ट देयर, कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, आप यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर देम, सो दैट मेक्स यू अ नाइस पर्सन। दिस बिहेवियर ऑफ योर्स, जो कि बिहेवियर भी नहीं एक ट्रेट है, ओके, ऑफ बीइंग अ पीपल प्लीजर, वो आपको पीपल प्लीजर तो बनाता ही है बट इट ऑल्सो लेट्स पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। लोगों को कोई मतलब नहीं आप कैसे इंसान हो। आई एम ओनली टॉकिंग टू women here, okay, to all the queens out here, I'm talking to you. लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनकी कितनी मदद करते हो, आप उनके बारे में कितना अच्छा बोलते हो। they will not give a flying f about you, okay? जहाँ पे आपने एक गलती कर दी ना, या अगर आपने उनको कुछ कह दिया या पीठ पीछे कुछ कर दिया जो उनको पसंद नहीं आया, they will just come at you as if they are going to eat you. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव बाउंड्रीज। अगर आज के टाइम में लोग रील्स में एंड यूट्यूब वीडियोस में इतना बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज देयर इज अ रीजन, दे हैव फेस्ड समथिंग एंड वो नहीं चाहते कि आगे के लोग कोई भी ऐसा करे, इंक्लूडिंग मी, राइट? इसलिए मैं भी ऐसे बोलती हूँ। बट वही है ना, इंसान जब तक गिरता नहीं है तब तक सीखता नहीं है। मैं भी देखती थी बहुत सारी वीडियोस, लेकिन मैंने कुछ सीखा नहीं जब तक मैं खुद उस गड्ढे में नहीं गिरी ना, खुद से एक बनाया हुआ गड्ढा में जब मैं खुद नहीं गिरी ना, तब तक मुझे समझ नहीं आया। वही बात है, इंसान जब तक सीखना ना चाहे वो नहीं सीख सकता, वही बात हो जाती है। सॉफ्ट स्पोकन एंड ये मत रहो, इनफैक्ट बी बोल्ड, जस्ट बोलो जो करना है, पहनो जो पहनना है, जस्ट डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू, बिकॉज एक जिंदगी है और ये जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है? एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज टू द बॉयज एज वेल। मुझे सॉफ्ट गर्ल क्यों बनने का मन हुआ मैं बताती हूँ। सो बेसिकली 2025 में मैं काफ़ी ऐसे रिबेलियस किड बन गई थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं काफ़ी रिबेलियस अग्रेसिव बन गई थी। मैं इधर देखती थी उधर देखती थी, मुझे लगता था अगर तुम मेरे साथ एक बार गलत करोगे मैं तुम्हारे साथ 10 बार और गलत करूँगी। मैं ये मोटिव में जी रही थी अपना 2025, एंड आई वुड से मैं अभी भी उसी मोटिव में जी रही हूँ, एंड मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि कोई मेरे साथ गलत करेगा दैट इज डिसरिस्पेक्ट एंड आई विल नॉट हैंडल इट वेल। So it's on you if you do me wrong. I also equally feel कि हर बार मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, you know, sometimes just karma can hit them and they can be in the worst place possible. तो अब मैं ये चीज़ें थोड़ी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। It's basically I don't really have to do all the things by my own. There is a reason. भगवान है, कर्मा है, काफ़ी सारी चीज़ें यार उन लोग हैंडल कर लेंगे। So मैं सीख रही हूँ कि not everything is in my hands and all of that. As a woman, एक चीज़ तो मैं कहूँगी ज़रूर कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ऊपर रखती हूँ ना, I literally quit a job just because I did not felt respected after a point there. इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूँगी. Just know what I can do when it comes to my self-respect. And that's what I want women to be today. I don't have the perfect lip shade जो मुझे चाहिए थी, था मेरे पास, मैंने अपनी बहन को दे दी. मेकअप फिक्सर जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाती हूँ. ये मेकअप फिक्सर से लिटरली मेरा फेस काफ़ी ग्लोई हो जाता है. दिस इज माई ग्लैम सेट ऑन यू मेकअप सेटिंग स्प्रे. चश्मा पहन लूँ गाइस, आई नीड इट.
बेसिक हेयर तो नहीं रखने वाली, आई वॉन्ट समथिंग। 2 ऑप्शंस, एक तो ये हेड पिन में लगा सकती हूँ एंड नहीं तो आई हैव दिस रबर, एक ही निकाल देती, शायद का जरूरत नहीं है, आई थिंक ये मैच भी हो रहा है। सो ये रबर बैंड है, इट्स सुपर क्यूट राइट। ओके, दिस इज द हेयर स्टाइल आई केम अप विद, आई थिंक इट्स फाइन, नॉट सो बैड। ओके, time for accessories. Already decided them while my camera was charging. Super cute. ये का पिंक है ना, सेम ऐसे ही पिंक था जिसका ये निकल गया। मैं इसको हाथ में पहन लूंगी, कुछ इस तरह, इट डज लुक क्यूट। बस और भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज है एंड मैं सबको डालूंगी। ऑल्सो वांटिंग टू वेयर दिस क्यूटेस्ट वॉच दैट आई हैव। आई थिंक विद दैट आवर आउटफिट, हेयर, एक्सेसरी, मेकअप, एवरीथिंग इज डन एंड दिस इज द फाइनल लुक. Wow, I love it. Okay, this is super cute. It turned out cute. The makeup is also quite fun. I love it. It looks so cute and you know, very aesthetic. I love the fact that it's minimal today because most of the time I find myself not too minimal. But it's so cute. I love it. This is totally giving and soft aesthetic girl personality. Definitely something that I wanted to do. And 2026 is about having a soft girl personality. My definition of being a soft girl aesthetic would be मैं अपने ही दुनिया में रहती हूँ और खुश रहती हूँ। वीडियो के एंड में आते आते काफी अच्छी धूप भी आ गई है, so why not end this video here? Thank you so much for watching. I'll bring more such videos like this. Like and subscribe and I'll see you in my next one. Bye, take care and keep shining girlies. Bye. वीडियो फिल्म करने में ना मुझे जेन्युइनली मजा आ गया एंड मैं गर्मा गर्म रसीले जलेबी लेके आई हूँ. Soft girl just have jalebis when they want to speak मीठा.